Hello everyone. In our last sessions, we learned about the single row functions in MySQL and whether they are numeric functions or string functions or date and time functions. We have covered all the three different types of the MySQL functions that are of single row type. They return the single result for each value in a column. Now, in today's session, we will be starting with the aggregate functions. Aggregate functions are those functions which act on the multiple rows or multiple records of a particular column and multiple values of particular column, and they return a single value. These may be sum function, average function, max, min, count, etc. Now, while covering these aggregate functions, we will be also be grouping them by using the group by clause, and for selecting the or for fetching the particular records based on a certain condition. Whenever we are using a group by clause, we will be using having instead of where. So we will be learning about all these in today's session. So let's begin with the aggregate functions. First one, you need to note down the definition, that they are based upon a particular column and they act on all the values of a column or a specific value based on the condition, and they return a single value. And these are sum, average, max, min and count, which are there in your syllabus. So let's start with the sum function. The sum function is used to find the total value of a particular column. For example, you might have stored the fees of all the students in a particular column. Now you want to know the sum of the fees paid by all the students. Then how you will be giving the command? Select, then the function name, then on which column it is going to act, right? Then the column name will come in the brackets here. Sum of fees from student. So it will give you the answer like this. Similarly, let me cover first theoretically. You want to find the maximum value out of a given values in a column. Then you may give select max, say fees or salary, उसको alias name दे सकते हैं maximum salary from employee, or you can select max fees, say maximum fees from M or from student. So you can find out the maximum out of a given range. Similarly, you can find the min out of a given range. Select min, hire date, employees हैं, उसका टेबल है आपके पास एम टेबल में हायर डेट है, हायर डेट में कौन सी डेट जो है मिनिमम डेट है, कौन सी डेट मैक्सिमम डेट है, दैट कैन बी सिलेक्टेड based on that. So let me first practically cover this much. Suppose we have a table like this. Say select star from student 1. This is the data in the student table. Now let me apply the sum function. So select sum. The column containing the fees is fees. So I want to find the sum of the fees from student 1. Table name is student 1. You can see the sum of all the fees is this much. Null is not included. Okay. Now similarly, you want to find the minimum fees paid by. Okay. So select min fees from student 1. So it is 2000, right? Okay. So it returns you a minimum. Similarly, you can find the max also. This is the maximum fees paid. Now coming on to the date type of the values, which will be min, which will be max. For that I am going to switch on to the another table. Select start from M. This is the table M, having the columns M number, E name, job, then migration number, then hire date, then sal, then commission, then
department number, and so on. Now if you look at the hire date carefully, it is in which format? It is in the particular format 4 bytes for the year, then 2 digits for the month number, then 2 digits for the day number, right? Now which will be maximum date and which will be the minimum date, that we have to see. So here it works a little bit in a reverse order of type of thing. ये वैल्यूज को काउंट करेगा, मैक्स डेट किसको लेगा, जो आपका जो रिसेंट ईयर होगा, जो जैसे 1982 है, एक 1981 है, तो 1982 को मैक्स लेगा, 1981 को मिन लेगा. तो से सिलेक्ट मिन हायर डेट from and so it is giving 17th December 1980. 17 December 1980 ये मिनिमम लिया है. एक्चुअली अगर हम ईयर्स काउंट करेंगे अब तक का तो ये मैक्सिमम हो जाना चाहिए, बट इट टेक्स द वैल्यू, सो इसको ये मिन लेगा. ठीक है. सिमिलरली मैक्स किसको लेगा, 82 वाले, 83 सॉरी, यहाँ 83 भी है. सो लेट्स फाइंड द मैक्सिमम आल्सो. So this is only thing that you have to take care while working with the date type of the values. इसलिए अगर किसी का सेम ईयर आ जाता है तो फिर आगे वो मंथ नंबर देखेगा, अगर मंथ भी सेम आ जाता है तो डेट है. Is it clear? So that's all regarding the min, max and the sum. Now let's start with the next one, that is the average. Again I'm coming on to the select start from student 1. You can see there is a null value, right? Let me first find the sum. Select sum fees from student 1. It is giving me 22,000, right? These are the values which were added, so it gives 2200. Now what is the formula for calculating the average? Sum total of the things by total number of the things. से अगर टोटल 7 रिकॉर्ड्स हैं, उन 7 का फीस का सम डिवाइडेड बाय 7, that will be the average. Now the doubt will be here that here the values are 1 2 3 4 5 6 7 and 8th value is null. Whether it is calculating the null in the sum? No. अगर वो सम किसी भी वैल्यू में हम नल ऐड कर दें, से आई से सिलेक्ट 2200 या 22,000 प्लस नल, तो ये रिजल्ट तो नल कर दे. किसी भी चीज़ में नल को ऐड कर दो, नल को सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस कर दूसरा मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, इट विल गिव यू द नल एज ए रिजल्ट. सो आई एम श्योर सम फंक्शन के अंदर यहाँ से ये एक प्रूफ हो गया कि सम जब भी हमने फंक्शन किया है तो उसमें नल को उसने ऐड नहीं किया. अगर नल को ऐड नहीं किया तो क्या एवरेज में वो उसको काउंट करेगा, क्या डिवाइड बाय 7 करेगा या डिवाइड बाय 8 करेगा? सो इट्स वेरी क्लियर, अगर उसको ऐड में नहीं लिया तो एवरेज में भी नहीं लेगा. सो डिवाइड किससे होगा, वो 7 से डिवाइड होगा. यू कैन सी, अगर मैं यहाँ पर AVG, ठीक है, फीस, yes wait, from we are calculating from one table base, so this, so it gives me this way 22,000 divided by 7 किया तब ये रिजल्ट आएगा. चेक कर लेते हैं. सेम रिजल्ट. अगर मैं 8 से करूं इसको डिवाइड तो रिजल्ट वुड हैव बीन दिस. इसका मतलब क्या हुआ, नल वाले को उसने काउंटिंग में भी नहीं लिया और इन्हीं का सम किया और इसी के 7 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज आ. तो वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग द एवरेज, अगर आपको उस कॉलम में कहीं नल वैल्यूज हो, या एक तो सम में भी नहीं डालना उसको, दूसरा जब डिवाइड करेंगे तो उनको वो नंबरिंग में भी नहीं काउंट करना. इज इट क्लियर? अगर इसी नल की जगह 0 होता तो आपका नेचुरली आउटपुट क्या आता, वैल्यूज तो सम तो वही रह जाता, क्योंकि 0 भी ऐड कर दोगे प्रीवियस वैल्यू में, बाकी जो 22,000 आया उसमें 0 भी ऐड कर दोगे, फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन क्योंकि 0 ऐड हो गई है और आपका जो काउंटिंग में आ गया वो,
तो डिवाइड बाई भी 8 हो जाएगा। तो लेट मी फर्स्ट चेंज। तो किसी भी वैल्यू का चेंज करने के लिए कॉलम के अंदर कमांड कौन सी है, अपडेट द टेबल नेम student1, द क्लाउज यूज इज सेट, किसकी कौन से कॉलम की वैल्यू सेट करनी है, फीस की, फीस इक्वल टू 0, वेयर ADNO इक्वल टू, आई होप इट इज 888, लेट मी चेक इट आउट, यस यहाँ नल है, वहाँ 888 है ADNO। सो ये हो गया ओके। सो लेट मी फर्स्ट सी द रिकॉर्ड्स, यहाँ 0 आ गया। अब हम इसका कैलकुलेट करते हैं। देखो सम तो वही आ जाएगा, सिलेक्ट सम फीस फ्रॉम स्टूडेंट 1। ये कंपलसरी नहीं है कि पहले सम कमांड देनी है फिर ही एवरेज देनी है, नहीं, ये तो मैं आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, राइट। ये सम आ गया। नाउ सिलेक्ट एवरेज फीस फ्रॉम student 1, it is giving me 2750, which means it has been divided by 8, तब ऐसा रिजल्ट है। 7 से डिवाइड करते तो ये रिजल्ट है। तो इस 0 वाले को काउंटिंग में आ गया है, ये नल होता तो काउंटिंग में नहीं आता। दिस इज द डिफरेंस, राइट। नाउ वन मोर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सॉरी एम, अब की बार M table. Now if you look at the M table, now if I give the command select count star from M, now what is the result it's going to, पहले तो ये देखो कि select count का मतलब क्या, काउंटिंग करेगा रिकॉर्ड्स। स्टार का मतलब क्या हुआ, ऑल द रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग डुप्लीकेट एंड सो। तो अल्टीमेटली हम कह सकते हैं कि ये सारी प्राइमरी वैल्यूज को काउंट कर लेगा, जितनी भी हैं हमें वो रिजल्ट दे देगा। ये रहा 40। अब इसी तरीके से अगर मैं करूं सिलेक्ट काउंट नेम फ्रॉम एम, e-name, so it is e-name, it's giving me the same, क्योंकि नेम भी कितने हैं 40। is there any name which is duplicated, no, यहाँ पर जॉब जो है वो डुप्लीकेट, तो वहाँ चलते अब जॉब कितनी है उनको काउंट करें, 14 दिखा दी। अब ये डुप्लीकेट को भी काउंट करें, क्लर्क रिपीट हुआ है, सेल्समैन, एनालिस्ट, मैनेजर, ये सारे रिपीट हुए, रिपीटेड को भी काउंट करें। नाउ आई डोंट वांट टू, आई वांट टू ओनली नो द व्हाट आर द वेरियस, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ द डिस्टिंक्ट जॉब्स आर प्रेजेंट विदाउट डुप्लीकेट, कितनी है। तो कौन कौन सी है, एक क्लर्क हो गया, दूसरा सेल्समैन हो गया, ठीक है, थर्ड इज मैनेजर, सेल्समैन द्वारा रिपीट हो रहा है, इसको काउंट नहीं करूँगा, मैनेजर भी रिपीट हो रहा है, उसके बाद एनालिस्ट चौथा हो गया, प्रेसिडेंट पांचवा हो गया, दैट्स ऑल आई सपोज। तो मुझे डिस्टिंक्ट जॉब ही चाहिए, काउंटिंग चाहिए, मुझे डिस्प्ले नहीं करानी। अगर मैं लिखूँ सिलेक्ट डिस्टिंक्ट जॉब फ्रॉम एम, now tell me whether it is going to give me the list of the different jobs or it is going to give me the number of the different jobs. This is what you have to predict now. क्या ये मुझे काउंटिंग बताएगा, काउंट करके बताएगा, या ये मेरे को लिस्ट करेगा डिफरेंट जॉब्स। काउंट का फंक्शन तो हमने यूज ही नहीं किया, तो ये तो आपको काउंट फंक्शन तो देगा नहीं। सॉरी एक मिनट, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने काउंट फंक्शन तो यूज ही नहीं किया, तो काउंट फंक्शन नहीं यूज किया तो उसने जो जॉब थी वो ही बता दी डिफरेंट जॉब्स। अब मुझे काउंटिंग चाहिए डिफरेंट जॉब्स की, एक्चुअली कितनी है यहाँ पर 1 2 3 4 5, दिस काउंटिंग आई रिक्वायर। सो इसके लिए थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे, इसी क्वेरी को यहाँ आगे काउंट फंक्शन लगा, काउंट डिस्टिंक्ट जॉब ब्रैकेट के अंदर रख दिया फ्रॉम एन। पिछली बार देखो हेडिंग क्या बना था,
डिस्टिंक्ट क्या, डिस्टिंक्ट जॉब, ये एक एक्सप्रेशन नहीं थी, क्लॉज लगा उसके आगे, तो जॉब ही हेडिंग बना। अब ये एक्सप्रेशन बन गई, फंक्शन लग गया काउंट आगे, तो हेडिंग क्या बनेगा, काउंट डिस्टिंक्ट जॉब 5, डिस्टिंक्ट जॉब। इसी तरीके से अगर मैं इसी चीज को काउंट सिंपली डिस्टिंक्ट हटा दूं तो ये 14 देगा इंक्लूडिंग डुप्लीकेट। अब एक और चीज देख लेते हैं, सिलेक्ट काउंट, मैंने दिया कमीशन फ्रॉम चार, कमीशन की वैल्यू देख लेते हैं, नल है, काउंटिंग में नहीं आए, 1 2 3, ये जीरो वाला काउंट 4, कोई नल को काउंट फंक्शन के अंदर काउंट नहीं करेगा। Now you may face a question in the examination, in the above table when I give the command count comm, this one, it gives the result 4, but when I give the count star from the emp, it gives the result 14. Why so? Why this difference has come in the output? When I give the command count comm from emp, it gives 4, whereas when we give count star from the emp, it gives 14. You may not be given the whole table, आपको टेबल नहीं दिया जाएगा, आपको सिर्फ इतना दिया जाएगा कि एक टेबल है एम्प, उसके अंदर अगर हम कमांड लगाते हैं, उसमें अंदर 2 कॉलम्स हैं, एक कमीशन कॉलम है और बाकी बाकी ABC कॉलम्स हैं जो भी हैं, उसके अंदर हम कमांड लगाते हैं काउंट कॉम फ्रॉम एम्प, इट गिव्स अस द रिजल्ट 4, whereas when we give the command count star from the emp, it gives us the result 14. Justify your answer. That may be for 2 marks. Now what answer is expected for this? The expected answer will be that it gives the output as 4 because there may be some null values under the com column which are not counted while this function is executed, whereas count star gives total number of the records in the table including the duplicates and so on. Is it clear? So that should be the appropriate answer for that, right? So let's move on to the presentation part. Let's see, you may be given the query like this: to calculate the total gross of the employees of grade E2, आपको बोला जाएगा कि there is a table employee, उसके अंदर gross एक field है, उसके अंदर grade भी field है, ठीक है, and now you need to calculate the total gross income of the employees of those employees who are having grade E2. So the command will be select sum, आगे जिस भी फील्ड में ग्रॉस इनकम होगी उस फील्ड का नाम आ जाएगा, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल का नाम आ गया, क्योंकि कंडीशन बेस दे रखा, उन्हीं एम्प्लॉयज का देखना है जिन एम्प्लॉय का ग्रेड क्या है E2, तो वेयर ग्रेड इक्वल टू E2 आप लगा सकते हैं। जैसे आपको प्रीवियस उसमें सम उन्हीं स्टूडेंट का सम चाहिए हु आर इन क्लास 12, so where class equal to 12, sum fees from student 1 where class equal to 12, तो 12th वालों के फीस का सम आ जाए, ठीक है। तो सिमिलरली अगर ये बोल दिया जाए चाहे ग्रेड E1 हो चाहे ग्रेड E2 हो, देन यू शो द एवरेज ग्रोस इनकम, देन यू राइट ऑन द कमांड अकॉर्डिंगली, सिलेक्ट एवरेज ग्रोस फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर ग्रेड इक्वल टू E1 और ग्रेड इक्वल टू E2। इसको अल्टरनेट वे भी लिखा जा सकता था, वेयर ग्रेड इन क्लाउज यूज कर लो और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा E1, E2 कोट्स के अंदर, ठीक है, दैट माइट बी द अल्टरनेट, ठीक है। Then to count the number of the employees in the employee table, count star from employee. To count the number of the cities different members belongs to, ठीक है, different members हैं, different cities चाहिए हमें, तो count distinct city from distinct cities count करनी है। अगर सिंपल बोला होता to display the distinct cities तो ये count हट जाता आगे से, ये वाला, तो cities distinct cities की लिस्ट दे दें। अब हमें काउंटिंग बतानी है, वो भी distinct city की, तो distinct clause लग गया, ठीक है। Now count function is used to find the number of the values of the particular column, ये हो गया। काउंट स्टार भी वही रिजल्ट दे देगा, फीस का दे आया, लेकिन कई बार डिफर कर जाएगा, अगर डिफर कर जाएगा तो इसका मतलब वहां पर क्या है, नल वैल्यू पड़ेगी, ठीक है। ये देखिए, ये एक टेबल दिया आपको, स्टूडेंट, रोल नंबर है, नेम है, जेंडर है और मार्क्स। नाउ यू हैव रिटन द कमांड
सेलेक्ट काउंट डिस्टिंक्ट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट। डिस्टिंक्ट नेम कितने हैं काउंटिंग करके बताना। एक रजनी, एक दीप, दीप को एक ही बार काउंट करेंगे, अक्षय थर्ड वन, प्रीति फोर, तो 4 इज आउट। अगर मैं यहाँ काउंट सीधा नेम फ्रॉम स्टूडेंट देता तो रिजल्ट में क्या आता 5, डिस्टिंक्ट नहीं, वो डुप्लीकेट भी साथ में देता। काउंट स्टार और काउंट नेम फ्रॉम द स्टूडेंट का देता 5, दोनों का आउटपुट एक जैसा आ रहा है क्योंकि टोटल नंबर रिकॉर्ड भी 5 है। ठीक है, एवरेज फंक्शन आपको बता दिया, नल वैल्यू को काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर ये वैल्यूज आई हैं, ये 7 का सम आया है, एक को छोड़ के 7 से डिवाइड करेंगे इसी चीज़ को तो आउटपुट में ये आ जाएगा। तो दैट्स फॉर द एवरेज। ये सेकंड एग्जांपल होगी एवरेज की आपके लिए, इसका आपको प्रैक्टिकल पहले बता चुका हूँ। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द MySQL क्वेरी। यहाँ पर से 5 to 6 मार्क्स का एग्जाम में क्वेरीज आ जाती हैं, 2 या 3 क्वेरीज आती हैं, इसके बेस पे 2 मार्क्स ईच। ग्रुप बाय, ग्रुपिंग करनी है। ठीक है ना, ग्रुप बाय स्टेटमेंट ग्रुप्स द रोज दैट हैव द सेम वैल्यू। नेचुरली है, ग्रुपिंग तो किसी एक ऐसे कॉलम या फील्ड के बेस पे होगी जहाँ पर वैल्यूज होंगी वो सिमिलर होंगी। या तो मैं जेंडर वाइज ग्रुपिंग करूंगा या मैं सब्जेक्ट वाइज ग्रुपिंग करूंगा। ठीक है, रोल नंबर वाइज ग्रुपिंग थोड़ी ना होगी, रोल नंबर तो सभी का डिफरेंट है। या तो क्लास वाइज ग्रुपिंग हो जाएगी क्योंकि क्लास जो है वो एक से ज़्यादा स्टूडेंट की सेम क्लास। सिमिलरली एक से ज़्यादा स्टूडेंट का जेंडर एक जैसा, एक से ज़्यादा स्टूडेंट की सब्जेक्ट एक जैसा। तो या तो सब्जेक्ट या स्ट्रीम वाइज ग्रुपिंग हो सकती है, या क्लास वाइज ग्रुपिंग हो सकती है, या फिर आपका सेक्शन वाइज ग्रुपिंग हो सकती है एंड सो। तो हमें तो पहले कॉलम टेबल के अंदर उस कॉलम को आइडेंटिफाई करना जिसके बेसिस पे ग्रुपिंग हो सकती है ना। ग्रुप बाय स्टेटमेंट इज ऑफन यूज्ड विद एग्रीगेट फंक्शन। तो ग्रुप बाय जो फंक्शन है वो हम अकेला यूज नहीं करते, उसको कहीं ना कहीं एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर यूज करते हैं क्योंकि वो ग्रुपिंग करने जा रहा है। ग्रुपिंग के अंदर या तो हम काउंट करेंगे, ग्रुपिंग के अंदर इंडिविजुअल वैल्यू तो डिस्प्ले नहीं होगी, या सम करेंगे या एवरेज निकालेंगे एंड सो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला टेबल है स्टूडेंट, मुझे चाहिए कि साइंस वालों के मार्क्स, सम मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने लिए साइंस वालों ने, कॉमर्स वालों ने टोटल मार्क्स कितने लिए, आर्ट्स वालों ने टोटल मार्क्स। दैट मीन मैं ग्रुपिंग किसके वाइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज। और ग्रुपिंग में शो क्या कर रहा हूँ, मार्क्स का सम। तो मेरे पास दो चीजें क्लियर हो गई कि मुझे ग्रुप बाय क्लॉज किसके ऊपर लगाना है, सब्जेक्ट के। ग्रुपिंग किसके वाइज कर रहा हूँ, सब्जेक्ट वाइज। नाउ एग्रीगेट फंक्शन किसके ऊपर लगाना है, मार्क्स, उनका सम चाहिए। सो बोथ ऑफ देम शुड बी देयर इन द सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट के अंदर सम सब्जेक्ट दे दिया क्योंकि मुझे ये भी, अगर मैं सिर्फ इतना ही शो करूं, यहाँ से हटा दूं, ये सब्जेक्ट हटा दूं, सम मार्क्स दे दूं ऐसे, और आगे बोल दूं फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय सब्जेक्ट, तो मुझे क्या पता चलेगा ये 188 किसका है, 156 किसका, जब तक कि इसके आगे या पीछे ये ना लिखा हो ये कॉमर्स वालों का है या ये साइंस वालों का, ये आर्ट्स वालों। ठीक है, तो वी हैव टू सेलेक्ट बोथ द सब्जेक्ट एज वेल एज सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट। आगे क्या कर दिया, ग्रुप बाय सब्जेक्ट। ऐसे ही सब्जेक्ट सर्व, सेलेक्ट सर्व सब्जेक्ट, मैंने ये देखना है कि एक सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स ने ऑप्ट किया, हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि मेरे को काउंट फंक्शन लगाना। ग्रुपिंग सब्जेक्ट वाइज ही रही, साइंस में कितने स्टूडेंट, काउंट स्टार, कॉमर्स में कितने हैं 2, आर्ट्स में कितने हैं 1, ऐसे रिजल्ट। ठीक है, लेट्स सी प्रैक्टिकली देखते हैं इसको। I have this table or not. Roll number, name, marks, subject, gender. Yes, I have completed. ठीक है, now in this, ये आप लोग भी ये टेबल बना सकते हैं, ऐसा ही रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं प्रैक्टिस पर्पस। ठीक है, now in this table I want to see the first the sum of the marks subject wise। अब यहाँ एक चीज आपको और क्लियर होगी, सिलेक्ट से सब कॉमा सम marks from student to group by subject। now doubt might be that ये नल का क्या होगा। मैंने पहले बताया सम ऑटोमेटिकली नल को छोड़ देता,
जब तक कि हम डेलिबरेटली इसमें सम ऐड ना, ठीक है। तो सब्जेक्ट लिया कॉमर्स, कॉमर्स वाला को 168 आया, तो कॉमर्स वाला कौन सा आ गया, ये 74, ये 94, 74 और 94 को ऐड किया 168। सिमिलरली ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम है, आर्ट स्ट्रीम को ही ह्यूमैनिटी स्ट्रीम बोलते हैं, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का एक ये रहा, एक ही रिकॉर्ड है तो 76। ये नहीं होगा कि अगर एक ही है तो उसका दिखाएगा नहीं, इतना दिखा। साइंस वालों का ये आ 1 2 3 इनका सामने, ठीक है। तो ये ऐसे ग्रुपिंग कर सकते हैं। ग्रुपिंग में एग्रीगेट फंक्शन यूज होना है और साथ में किस कॉलम पे। अगर मैं ये सब छोड़ दूं क्या ये क्वेरी चलेगी? ऑफ कोर्स क्वेरी विल वर्क। ये मैंने सब्जेक्ट छोड़ दूं, मैं लिखा सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रुप बाय सब, यहाँ वेयर नहीं आएगा, ग्रुप बाय के साथ वेयर क्लाउज नहीं आता, उसके साथ हैविंग लगता है, वो बताता हूँ। सेलेक्ट सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रुप बाय सब्जेक्ट, तो यहाँ दिखा तो दिया, बट आई डू नॉट नो that this 168 is the sum of which subject marks, whether it belongs to the humanities, whether it belongs to the commerce or the science. So जिसके बेस पे ग्रुपिंग कर रहे हो उसको भी आपने सिलेक्ट क्वेरी के अंदर रखना जरूर है। सब, सब मीन सब्जेक्ट कॉमा सम फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रुप बाय सब्जेक्ट। सिमिलरली काउंटिंग भी कर सकते हो, या सम की बजाय काउंट, कितने स्टूडेंट्स हैं, मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के हैं कॉमर्स में, ये कितने स्टूडेंट्स के हैं, काउंट स्टार भी लगा सकते हो, टोटल स्टूडेंट्स कितने, ठीक है। सो दिस इज हाउ द ग्रुप बाय फंक्शन वर्क्स। नाउ ग्रुप बाय फंक्शन के साथ हैविंग का ये देखिए, ये मैंने इसी में जेंडर वाइज किया ग्रुपिंग। सेलेक्ट जेंडर कॉमा सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रुप बाय जेंडर। फीमेल्स ने कितने मार्क्स स्कोर किए हैं, मेल्स ने कितने, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर दैट राइट द कमांड टू फाइंड द सम ऑफ द मार्क्स ग्रुप्ड बाय या जेंडर वाइज फ्रॉम द टेबल स्टूडेंट टू गिवन अबव। तो जेंडर वाइज आपने सम ऑफ मार्क्स शो कर, तो जेंडर कॉमा सम मार्क्स फ्रॉम स्टूडेंट टू ग्रुप बाय जेंडर, इज इट क्लियर? देन कम्स द हैविंग। हैविंग क्लॉज कंडीशन देने के लिए यूज होगा, यहाँ पर भी ग्रुप बाय क्लॉज यूज हुआ है। वहाँ अगर हमें क्राइटेरिया बेस्ड फेचिंग करनी है रिकॉर्ड्स की, कोई कंडीशन बेस्ड फेचिंग करनी है रिकॉर्ड्स की, तो वी डोंट यूज वेयर क्लॉज, वी यूज द हैविंग। हैविंग क्लॉज was added to the SQL because the where keyword could not be used with the aggregate functions while using the group by. For example, this is the table. I want to know the subject wise the count of the students from the student table, लेकिन कंडीशन क्या है, उन्हीं की काउंटिंग दिखाए जिनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो 2 से कम या 2 से ज्यादा या 1 से ज्यादा सपोज, ठीक है। देखिए प्रैक्टिकल देखिए, दिस इज द टेबल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट 2। I want to see the sum of the marks के लिखा है, I want to see the counting of the students, मुझे देखना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखने हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड बी मोर देन 1, जिसका एक ही स्टूडेंट है उसको शो ना करें। जैसे ह्यूमैनिटीज वाले को हटा दे, बाकी सारे शो। कमांड में मैंने यहाँ लेस देन 2 लिखा हुआ है, अब मैं बोल रहा हूँ मोर देन 1 जिनका है वो ही शो कर। सेलेक्ट, दोनों टाइप से दिखाते हैं आपको, सेलेक्ट सब कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट 2, ठीक है, ग्रुप बाय सब्जेक्ट। अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने कंडीशन में बोला है जिनका काउंट जो हो वो कितने से ज़्यादा हो, 1 से ज़्यादा हो, जिनका जो काउंट है वो 1 से ज़्यादा हो। अब यहाँ लेस देन 2 लिखा है, मैं 1 से मोर देन 1 बोल रहा हूँ ताकि आपके पास ग्रेटर वैल्यू आए। तो मैं अगर कोई तो हैविंग नहीं लिखा, वेयर काउंट
स्टार ग्रेटर देन 1। अब ये मेरे को एरर दे क्योंकि मैं वेयर क्लाउज लगा रहा हूँ किसके साथ, एग्रीगेट फंक्शन में ग्रुप बाय क्लाउज के साथ। तो ये वेयर क्लाउज नहीं चलेगा। वेयर क्लाउज की जगह कंडीशन देने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 1। ये कॉमर्स के कहता 3 है, साइंस के 3। अगर इसी चीज को मैं लेस देन 2 कर दूं तो आपको वही आउटपुट देगा जो आपके स्लाइड में है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज का। तो आई होप इट इज क्लियर नाउ कि जब भी ग्रुप बाय क्लाउज में आपने कोई कंडीशन देनी है तो वो हैविंग यूज करना है rather than where, right? So this is how you can science wise group by select sum of the marks from the student, group by subject, having subject है, सिर्फ साइंस वालों का सामान है कि वहाँ कंडीशन लगा दी, सिर्फ उन्हीं का आएगा जिनका हैविंग सब्जेक्ट इज साइंस, ठीक है। एंड द लास्ट फ्यू स्लाइड्स फॉर अस इज, ये काउंट स्टार ये दे दिया मैंने जो अभी करके दिखाया आपको। अब आ जाता है कई बार एग्जाम में डिफरेंस बिटवीन द हैविंग एंड द वेयर क्लॉज। राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन हैविंग एंड द वेयर क्लॉज। वेयर क्लॉज works in respect of the whole table. Where clause is used to put a condition in the individual row of the table. Where clause is applied on the individual records only. If where and having both are used, then where will be executed first. अगर दोनों इकट्ठे यूज होते हैं कहीं पर भी तो वहां पर where पहले यूज होगा, having बाद, ठीक है। Having clause works in the group only. Having is used to put a condition on the individual group formed by group by clause. The condition in the having clause is applied on the group of the records. तभी group of records में कोई चीज फंक्शन काम करेगा वो एग्रीगेट फंक्शन, तो हम बोल रहे हैं कि एग्रीगेट फंक्शन के साथ इसको यूज। That's all for this chapter, and same way we will be finishing the SQL portion for 11th class with this. बाकी के दो जो अभी 2 चैप्टर्स और बचे, एक चैप्टर और बचा हुआ है वो हमारा 12th में कवर। 11th तक के लिए जितना एसक्यूएल का पोर्शन था वो हमने फिनिश कर लिया। सो आउट ऑफ 70 मार्क्स थ्योरी वी हैव फिनिश्ड 20 मार्क्स फॉर द नेट, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन आई विल बी पोस्टिंग द असाइनमेंट बेस्ड ऑन द सिलेबस दैट वी हैव कवर्ड टिल डेट। तो आपने अच्छी तरह से इन सारे वीडियोस को व्यू करना है। आपके पास 2-3 दिन मैं दे रहा हूँ अभी, एंड बाय थर्सडे आई विल बी पोस्टिंग द असाइनमेंट and you will solve that assignment in your फेयर नोटबुक, क्लास नोटबुक जो भी है एक ही लगाना, मोटा रजिस्टर लगाना है जो 12th में भी काम आएगा। सेम this syllabus will be there in the class 12th, right? So 11th, in the 11th class you have to be say more attentive than in 12th, right? So record all the notes in your notebook, and whatever assignment I'll be giving, solve it in the notebook, and whenever you are finished with solving the assignment within next 2 days you have to send that to me in the form of the screenshots that I have done my work. Is it clear? Okay, nice. Have a nice day.